Good morning, everyone. Namaskar and welcome to Wednesday webinars by the top leadership of Safe Shop organization. It gives me great pleasure to announce that our Wednesday webinars have now become a habit. It's something which we look forward to every Wednesday to share our experiences, our strategies, our trainings, and our beliefs with the entire network and family of the Safe Shop family. बहुत अच्छा लगता है कि हर बुधवार को हम लोग सब तैयारी से बैठे होते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। और इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए हमारी बेस्ट और टॉप लीडरशिप आपके साथ हर बुधवार को कुछ समय गुजारती है। आज का टॉपिक है चेंज एंड द चैलेंज ऑफ चेंज। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन नेचर। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज। और चेंज और बदलाव की एक चुनौती होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बदलाव की चुनौती या द चैलेंज ऑफ चेंज। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, टू इम्प्रूव इज टू चेंज, but to be perfect is to change often. So if you are constantly evolving and constantly changing, that's the time when you will achieve perfection. But with change comes some fears. कुछ खौफ होते हैं बदलाव के साथ एसोसिएटेड। कुछ डर होते हैं जो बदलाव से लगते हैं। और यही चैलेंज होता है चेंज का। और इस खौफ को कैसे ओवरकम करना है, इस डर को कैसे ओवरकम करना है और चेंज को चैलेंज कैसे बनाना है, इसके ऊपर आज की हमारी वेबिनार का टॉपिक है। ये सेशन लेंगे दीपक बिल्ला जी, वन ऑफ आवर अमेजिंगली enthusiastic and motivating speakers, somebody who has personally embraced change on a daily basis and is not fearful of change. You have to catch the bull by its horns. बैल को सींग से पकड़ना है और वही चेंज की लड़ाई। इसमें ना खौफ की कोई जगह है, ना डर की कोई जगह है। हमारे को सिर्फ एक चीज करनी है और वो है बदलाव को एम्ब्रेस करना है। You have to embrace change and turn it into a challenge which you are going to overcome. Today is going to be a very, very exciting session because we are changing regularly. We are evolving on a weekly basis and we can see the results of the change. We are doing historic numbers which we have never seen before. This entire episode of 50, 60 days of change where we have embraced the digital technology is helping the organization grow at the fastest pace we have ever grown in our lives. And we keep saying that we will do in 19 months what we did in 19 years. Initially, it was just a statement, then it became a challenge, and now we are converting it into a reality. Every week, we realize that this is going to be a reality. Socrates ने कहा था, the secret of change is not to focus all your energy in fighting the old, but the secret of change is to focus all your energy in building the new. And we have to focus all our energy on building the new. And to tell you a little more about Deepak Billa, one of our stalwart pillars of the organization, is his elder brother, the darling of Safe Shop, Harsh Billa, who we all love immensely. Both these brothers have brought so many laurels to the organization. They are exceptional in every manner.
and they are the embodiment of change, regular change in their own personal lives, in their professional lives, and in the way they conduct themselves and their business. So I would now like to invite on this screen to take this session forward Mr. Harsh Billa so that he can do us the honors of inviting Deepak Billa for this wonderful and historic session. Harsh, please take this session forward. थैंक यू सो मच सर, आपके इस हौसला अफजाई के लिए। मैं हर्ष बिल्ला, क्राउन एम्बेसडर सेफ शॉप, इस वेबिनार में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने कभी कहीं पर सुना था कि अच्छे वक्त में तो सभी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी असलियत तब पता चलती है जब वक्त बदलता है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ ऐसा देखा कि जिसके लिए बड़ी मेरे दिल में हैरानगी है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये शिकायत किया करते थे कि हमारी डायरेक्टर से मुलाकात बहुत कम हुई है, मैं डायमंड बन गया हूं, मैं डबल डायमंड बन गया हूं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहा करते थे कि मैं मरकरी बन गया हूं और आज तक मेरी कभी हमारी कंपनी के किसी भी डायरेक्टर से कभी मुलाकात नहीं हुई है। दोस्तों, वो वक्त अच्छा था तो उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, हमारे सभी डायरेक्टर्स ने कुछ माध्यम के थ्रू, एक से अनेक के थ्रू, इस वेबिनार के थ्रू हमें इतना वक्त दिया कि उन सब लोगों की जो शिकायतें थी वो सारी की सारी, जो कि कई सालों की शिकायतें थी, वो दूर हो गई हैं। रजा सर ने और हमारे सभी डायरेक्टर्स ने इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब 50-60 दिन लग गए कंपनी को स्टार्ट होने में, रोज 1 बजे हमारे सभी 1000 डायमंड से रोज मुलाकात करी है। इस वेबिनार के थ्रू हमारे सभी डायरेक्टर्स ने हर बुधवार ये मिलने का जो सिलसिला चालू करा है, ये हमारे सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने इस वक्त में जो ये हमारा साथ दिया है, ये मैं और मेरे बहुत सारे साथी शायद जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं पूरे सेफ शॉप टीम की तरफ से अपने सभी डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा इस स्टेज से करना चाहता हूं, स्क्रीन से करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान, जबकि सारी दुनिया में लोगों की नौकरी पे एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था, लोग ये सोच रहे थे कि मेरी नौकरी रहेगी भी कि नहीं रहेगी, लेकिन हमारी कंपनी ने जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ये अनाउंस करा कि कंपनी में कोई भी स्टाफ है उसको अपनी सैलरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लॉकडाउन जब तक भी रहेगा उनको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। जहां पर मैंने सुना है कि लोगों की सैलरी को काट दिया गया है, कहीं पर 50% कर दिया गया है और कहीं पे 25% भी कर दिया गया है। हमारे स्टाफ को हमारे ऑफिस में पूरी की पूरी सैलरी मिली है। जो लोग ऑफिस नहीं भी आए, जो 2 महीने तक ऑफिस नहीं भी आए, उनको भी उनकी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। दोस्तों, उसके साथ साथ हमारे नेटवर्क के जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे जाबाज हैं, जो कि फील्ड में दिन रात लगे हुए थे, उनके लिए भी कंपनी ने इतना कुछ सोचा जिसका कि मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। कंपनी ने 15,000 से कम जो भी लोग हफ्ता कमाते हैं उनको 15% का एक बोनस अनाउंस करा, जो कि 6 हफ्तों के लिए था। दोस्तों, ये एक ऐसा हौसला अफजाई थी जिसको कि मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। मैं जिस बात से शुरू कर रहा था कि बुरे वक्त में ही इंसान का पता चलता है, मेरे लिए जो मेरे दिल में जो कंपनी को लेकर जो समर्पण था, जो विश्वास था, वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, ये भी कुछ हमारे इस लॉकडाउन से मिलता जुलता ही है कि चेंज जो होता है वो बड़ा एक चैलेंज होता है, और जब ये चेंज करना होता है तो बहुत सारी मुश्किल आती है। लेकिन दोस्तों, यही कारण था जो कि हमारी कंपनी सच्चाई से चलती रही, हमारे लीडर्स का, हमारे स्टाफ का हमेशा ख्याल रखती गई। इसी का एक बहुत बड़ा कारण ये हुआ कि जब लॉकडाउन के दौरान, जबकि कंपनियों को ये भी नहीं है भी पता कि कहां से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें, और इसी वक्त में हमारी कंपनी ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। जैसे कि रजा सर ने एक मीटिंग में बताया कि हमारी लास्ट 2 वीक पहले जो कंपनी की टर्नओवर थी, वो सेकंड हाईएस्ट एवर टर्नओवर हमारी कंपनी ने अचीव करी, जो कि कंपनी के लिए और हम सब लोगों के लिए, जो हम फील्ड में रहते हैं, जो हम सेल्स करते हैं, उनके लिए एक बहुत सम्मान की बात है।
दोस्तों ये चेंज में जो हमारी कंपनी ने जो काम करे वो उसमें चैलेंज जरूर था, मुश्किल भी जरूर थी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि चेंज कैसे है और कैसे करना है। दोस्तों इस टॉपिक को लेने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी स्क्रीन के ऊपर आने वाली है जिनको कि पूरा का पूरा सेफ शॉप भगवान की तरह मानता है। उनकी उम्र तो बहुत छोटी है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस सेफ शॉप में सबसे ज्यादा है। जितने भी क्राउन एम्बेसडर कंपनी में हैं, उनकी उम्र उन सब में सबसे छोटी है, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो सबसे बड़ी हैं। मैं कहूंगा कि उनकी बातें और उनकी सोच अपनी उम्र से 15-20 साल बड़े व्यक्ति की तरह है। दोस्तों वो बहुत शानदार स्पीकर हैं, बहुत जबरदस्त मोटिवेटर हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं, कंपनी के सभी डायरेक्टर्स और सभी सीनियर्स और मेरे सभी साथी भी कहते हैं। तो मैं स्क्रीन पे इनवाइट करूंगा मेरे ब्रदर और मेरे सबसे अच्छे दोस्त मिस्टर दीपक बिल्ला। Thank you, friends. Thank you so much. Thank you, Rajat sir. Thanks to all directors. Thanks to all my friends. सभी लोग जो आज यहाँ पर इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ साथ जितने भी लोग आज इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आज के दौर से, जिस दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं, उससे बिल्कुल संबंधित है। द चेंज इज चैलेंजिंग। अब पूरा बदलाव का दौर चल रहा है। जिस दौर से हम लोग निकल रहे हैं उसके अंदर सब कुछ बदल रहा है। आप हमारा बिजनेस देख रहे हैं, जिस बिजनेस के अंदर सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। आप बाकी बिजनेस देख रहे हैं जहां सब चीजें बदलती चली जा रही हैं। कुछ ऐसी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई जो कभी भी नहीं थी। सैनिटाइजर, मास्क हिंदुस्तान में लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे, लेकिन आज हर इंसान की जिंदगी की सबसे पहली जरूरत वो बन गई। रीजन ये कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस क्या किसी को मालूम था? जी नहीं, ये बिल्कुल अननोन था, अनसर्टेन था, किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन ऐसी कौन सी चीज हमारी जिंदगी में कब हमें बदलाव करने पे मजबूर कर देगी, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर चीज के लिए, हर बदलाव के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कुछ इन्हीं सब बातों को सोच के आज का टॉपिक डिसाइड किया गया। मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जिन स्लाइड्स के माध्यम से मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। द चैलेंज ऑफ चेंज। बदलाव एक चुनौती। जी हाँ, अपने आप को बदलना बिल्कुल एक चुनौती से कम नहीं है। हम सब लोग बातें तो करते हैं, हम सब लोग बोलते तो हैं कि हाँ बदलाव जरूरी है और बदलाव के साथ ही तरक्की होती है, लेकिन एक्चुअली में बदलाव कौन लोग कर पाते हैं, कहाँ कहाँ जरूरी होता है, बदलाव करने के पीछे किस माइंडसेट की जरूरत है, इन सब चीजों को लेके आज मैं कुछ बातें करने की कोशिश करूंगा। चेंज इज ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। अभी रजत सर भी यही बात कर रहे थे कि एक ही ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, वो है बदलाव। हर थोड़े वक्त के अंदर चीजें अपने आप बदल जाती हैं। वक्त और हालात के साथ हमें हमारे व्यापार को, हमारे काम करने के तरीके को, हमारी आदतों को बदलना पड़ता है। और जो लोग इन सब चीजों के साथ में नहीं बदल पाते, उनके लिए तरक्की मुश्किल हो जाती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर मैं आज की ये स्लाइड्स आपके सामने रख रहा हूं और अपनी बात अच्छे से रखने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसे अच्छे से ना कि सिर्फ सुनने की बल्कि समझने की और अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करेंगे। Those who change grow and flourish। जो लोग वक्त के साथ बदलते हैं वही तरक्की करते हैं, वही लोग आगे संपन्न होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। हमारे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े वो हैं, एक एप्पल, नोकिया। मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसे हैं जो आज से 15 साल 20 साल पहले, उनकी एज क्या रही होगी। आज हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन आज के युग के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एप्पल के बारे में नहीं जानता। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नोकिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे याद है जब मैं यंग था, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल था नोकिया। अगर किसी आदमी के पास सबसे अच्छा मोबाइल कैरी करना है तो उसके पास होता था नोकिया। और धीरे धीरे वो वक्त बदलता चला गया, टेक्नोलॉजी चेंज होती चली गई, स्मार्टफोन्स का दौर आता चला गया। और स्मार्टफोन के दौर के अंदर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, क्योंकि एक माइंडसेट था कि वो किंग है, और वो किंग अपने आप को ना बदल पाने के कारण उनकी जगह एक ऐसा प्लेयर ले गया एप्पल,
जो लगातार हर साल हर 6 महीने में अपने आप को बदलता रहता है, ना कि सिर्फ वक्त के साथ बदलता है। एप्पल इसलिए मार्केट लीडर है क्योंकि वो भी सेफ शॉप की तरह वक्त से पहले ही अपने आप को बदल लेता है। चेंज इज चैलेंजिंग, बदलाव करना एक चुनौती के बराबर है, ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन ऐसा क्यों है, इस बारे में बात करना जरूरी है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां पे हर किसी व्यक्ति को बदलाव करने की जरूरत है। ये चैलेंजिंग क्यों है, ये चुनौती क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैजिक हैपेंस आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग इस बदलाव को सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो अपने डेली शेड्यूल उन्होंने एक बनाया होता है। हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की शुरुआत संघर्ष से करी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलना, रात को 10 11 12 बजे घर आना, दिन रात 24 घंटे अपने व्यवसाय के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचना। लेकिन हम में से ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चलते वक्त के साथ में बहुत तरक्की करी, और इस तरक्की के कारण हम लोग बड़े बड़े लेवल्स पे भी आ गए। कोई किसी बड़े लेवल पे होगा, कोई बहुत बड़े लेवल पे होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हम सब लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया, हम सब लोगों ने अपना एक डेली शेड्यूल बना लिया, हम सब लोगों ने अपने काम करने की एक आदत बना ली, ना कि सिर्फ हमारे प्रोफेशन में, जबकि हर प्रोफेशन के अंदर, हर किसी बिजनेस के अंदर ऐसा ही होता है। तो जब बदलाव का दौर की जरूरत पड़ी, मतलब जैसे अचानक से कोरोना वायरस आ गया और बदलाव की जरूरत पड़ी, तो ज्यादातर लोग अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं लेके आ पाए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को अपने बिजनेस में और कुछ लोगों को दूसरे बिजनेस में, जो अपनी पुरानी आदतों से, जो अपने पुराने कंफर्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहे, और उसकी बदौलत वो अपने बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस लेकर ही नहीं आ पा रहे। और इसी बारे में मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूं कि चेंज योर ओल्ड हैबिट्स टू चेंज योर सेल्फ। अगर बदलाव लेकर आना है, अगर आगे चलना है, जो मार्केट लीडर्स हैं उनको आगे मार्केट लीडर्स बने रहना है, तो अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी सोच को, अपने पुराने रवैये को और अपने पुराने वर्किंग आवर्स को, अपने पुराने शेड्यूल को हमें बदलना ही पड़ेगा। कुछ इन्हीं चीजों की बात मैं यहां करने जा रहा हूं। वी हैव 3 ऑप्शंस इन चेंजिंग आवरसेल्फ: चेंज बिफोर टाइम, चेंज विद टाइम एंड चेंज आफ्टर टाइम। अगर हमें बदलाव लेकर आना ही है और बदलाव जरूरत है, तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला, चेंज बिफोर टाइम, आप वक्त से पहले बदलिए। दूसरा, चेंज विद टाइम, आप वक्त के साथ बदलिए। ऑप्शन नंबर 3, आप वक्त के बाद बदलिए। ये तीनों ही ऑप्शंस आपके पास है, और इन तीनों ऑप्शंस के अंदर हमारे को सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, नीड ऑफ द टाइम और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलना तो पड़ता ही है। चॉइस इज योर्स। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 3 दरवाजे हैं लेफ्ट साइड पे, वहां लिखा हुआ है चॉइस इज योर्स। आपकी चॉइस है, या तो आप वक्त से पहले बदल लीजिए, वक्त के साथ बदल लीजिए, वक्त के बाद बदल लीजिए, लेकिन बदलना तो आपको है ही है। और यही सारी चीजें आपसे डिस्कस करने के लिए आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी डिस्कस करूंगा दोस्तों, जो मैंने अपने बचपन के दौरान अपने माता पिता से सीखी। शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था जो मेरे फादर ने मुझे दिया, और उसकी बदौलत मुझे जिंदगी के अंदर कितना बड़ा फायदा मिला, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई ये बात आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वक्त है, ये बात है, शायद आप लोग, कुछ लोग हंसेंगे भी, गैर कानूनी तो था, लेकिन मैंने अपने फादर से कार सीखनी 6th क्लास में शुरू कर दी थी। जब मैं 6th क्लास में था, मुझे बहुत शौक था कि मैं कार चलानी सीखूंगा। और सुबह सुबह मेरे फादर ने बोला कि ठीक है, कार चलानी सीखनी है, सुबह रोड्स खाली हैं, सुबह 5 बजे आप तैयार हो जाइए। मैं सुबह 5 बजे तैयार हो गया, और मेरे फादर ने मुझे आधा घंटे तक सिखाया कार कैसे चलानी है। पहले पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, और धीरे धीरे कार बढ़ती चली जाएगी। तो हम कार लेकर रोड पर निकल पड़े, और पहला गियर डाला, दूसरा गियर डाला, तीसरा गियर डाला, और बहुत जल्दी मेरी कार चौथे गियर के अंदर आ गई। चौथे गियर के अंदर जब मेरी कार आई तो मैं बहुत खुश था, मुझे लगा कार चलानी तो बहुत आसान है, मैं सीख गया। लेकिन अचानक से रोड के ऊपर बीच में बहुत सारी गायें आ गई। ये इमेज मैंने नेट से लेके सिलेक्ट करी है सिर्फ अपनी बात को आपके सामने रखने के लिए। चौथे गियर में कार चल रही थी, मैं बहुत उत्साहित था कि मुझे कार चलानी आ गई, लेकिन अचानक से बीच में गायें आ गई, कार को रोकना पड़ गया। वो एक ऐसी चीज थी जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो जाएगा। बड़ी सारी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हो जाते हैं, वो भी ऐसा हो गया। कार रोकी, गाय रोड से निकली, मेरे पिताजी ने बोला कार स्टार्ट करो। मैंने कार स्टार्ट करी और अचानक से झटका खा के मेरी कार रुक गई। मैंने उनकी शक्ल की तरफ देखा और मैंने देखा, पापा ये क्या हुआ? उन्होंने बोला कार चौथे गियर में थी, पहले तो डालो। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला बेटा, जब जब स्पीड रुक जाती है, जब जब स्पीड स्लो हो जाती है, किसी भी कारण से जब हमारा वाहन, हमारा मतलब
कन्वेंस रुक जाता है तो हमारे को एक ही चीज याद रखनी है, बैक टू बेसिक्स। जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे हमें वापस आना। तो मुझे उनकी बात समझ आई, मैंने कार पहले गियर में डाली और फिर दोबारा से कार स्टार्ट करनी शुरू करी। थोड़ी ही देर हम चले थे, कार दोबारा सेकंड गियर में और थर्ड गियर में आ गई। लेकिन अचानक से और 2-4 मिनट के बाद फिर मेरी कार जो है वो थर्ड गियर के बाद रेड लाइट आई और वहां पे रुक गई। जब कार रुकी थर्ड गियर पे, लाइट ग्रीन हुई, हमने दोबारा कार चलानी स्टार्ट करी तो फिर कार झटके खा के रुक गई। जिन लोगों को कार चलानी आती है, जिन लोगों को बाइक चलानी आती है, जो रेगुलर चलाते हैं, मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन मेरी पूरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने थर्ड गियर के अंदर दोबारा कार स्टार्ट करी, कार झटके खा के रुक गई और मेरे पापा ने मुझे फिर बोला, बेटा तू फिर भूल गया, जब जब स्लो हो जाए या जब जब रुक जाए तो एक ही बात याद रखनी है, बैक टू बेसिक्स। जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पे हमें वापस आना। मैंने फिर कार फर्स्ट गियर में डाली, मुझे लगा ये तो बड़ा आसान है, कि फिर वापस चल पड़ा और कार फिर दूसरे तीसरे चौथे गियर में आई। तीसरी बार जब कार रुकी तो उन्होंने मेरी तरफ आंख का इशारा दिया, बोलने की जरूरत नहीं थी, मुझे याद आ गया बैक टू बेसिक्स और मैं फिर चल पड़ा। चौथी बार फिर कार रुकी, पांचवी छठी बार के बाद मुझे बोलने की या इशारे की या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो चीज मेरी आदतों में शामिल हो गई कि जब जब कार अप चलेगी डाउन चलेगी तो मुझे टाइम की नीड के हिसाब से, मुझे वक्त के हिसाब से, मुझे स्पीड के हिसाब से अपनी वाहन के गियर्स को चेंज करना। अब ये बात मुझे कार चलानी याद आ गई, उसके बाद मैंने हजारों लाखों किलोमीटर कार चलाई, मुझे कभी भी नहीं पता चला कि मैं गियर बदल रहा हूं। अब मानिए वो आदत में ऐसा शामिल हो गया जैसे आप कार चलाते हैं 200, 400, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लोग सैकड़ों किलोमीटर रोज बाइक स्कूटर चलाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब बातें करते करते, कुछ सोचते सोचते वो गियर बदलते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो गया कि स्पीड स्लो हो गई तो वापस छोटे गियर में आ जाओ, बैक टू बेसिक्स, और जैसे ही स्पीड बढ़ने लगे दोबारा से टॉप गियर में आ जाओ। ये बात मुझे तब तो सिर्फ किताबी बात लगी, लेकिन जिंदगी में समझ कब आई, ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप सब लोग जिन्होंने मेरी जीवनी पढ़ी हुई है, हम दोनों ब्रदर्स की बिजनेस बाइबल के अंदर या बहुत सारी जगह लोगों ने सुनी है, हजारों जगह पे हमारी शेयरिंग्स भी हैं। उसके अंदर हमने बताया कि बचपन में परिवार में सब कुछ था, कारें थी, पैसा था, सब कुछ था। जब मैं 12th के अंदर था और अपने 12th के एग्जाम्स देने के बाद कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक फैमिली के अंदर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। मेरे फादर को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, काफी पूंजी हमारी उसके अंदर खत्म हो गई और मेरे फादर उस चक्कर में बीमार भी हो गए। और एक दिन ऐसा था जब मेरे फादर हॉस्पिटल से वापस आए, हम सारे बैठे हुए थे घर के अंदर और ये टेंशन थी कि बिजनेस खत्म हो गया, जितना हमारा कैपिटल था वो सारा का सारा मार्केट में लॉस हो गया, अब क्या करें। तो मेरे फादर ने फिर एक बात समझाई कि बेटा अगर जिंदगी के अंदर कार स्लो हो जाए, रुक जाए, तो बस एक ही बात समझनी है, बैक टू बेसिक्स, पहले गियर में अपनी जिंदगी की गाड़ी को ले आओ। मैंने बोला वो कैसे? तो उन्होंने समझाया कि सबसे पहले अपनी लाइफ से लग्जरीज खत्म करो, आपको अपनी बेसिक लाइफ पे वापस आना है। हमारे घर 2 कारें थी, हमने दोनों बेच दी। हमारे घर, मुझे नहीं पता आप कितना सच मानेंगे, लेकिन हमारे घर एसीज थे, हमने उतरवा के वापस कूलर पे ले आए। मेरी मदर ने फाइनल किया कि अब हम मेड्स और सर्वेंट्स हटाएंगे, उन्होंने खुद काम करना शुरू किया। हम दोनों भाइयों ने नौकरी करने का निर्णय लिया। मेरी सैलरी लगी 1200 रुपए की, हर्ष जी की सैलरी लगी 2200 रुपए की, और हमने अपनी जिंदगी को वापस में फर्स्ट गियर से दोबारा शुरू किया। वो दोबारा से सेकंड गियर, थर्ड गियर में आई। जिंदगी में सेफ शॉप आया, वो फिर फोर्थ गियर के अंदर आई, लेकिन सेफ शॉप की जर्नी भी शुरू फर्स्ट गियर से ही हुई थी। और आज 19.5 साल हो गए, 25 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बन गया। लेकिन आज यहाँ पर जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो यही बात करने जा रहा हूँ कि वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हमारे को अपनी गाड़ी के गियर्स बदलने। हम में से सब लोग सेफ शॉप बिजनेस कर रहे थे, हम में से सब लोग अपने अपना संघर्ष कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। जो डायमंड्स, डबल डायमंड्स बन गए वो कंफर्ट जोन में थे, और जो उनसे ऊपर लेवल पे थे वो सब लग्जरी जोन्स में थे। सब लोग अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अचानक से जिंदगी के अंदर एक ऐसी चीज जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कोरोना वायरस आ गया और हमारी जिंदगी एक जगह पे आके रुक गई। अब उस जिंदगी के अंदर आने के बाद जब वहां पे हम लोग रुके थे, तो वही सारी चीज जो जिंदगी के अंदर एक जगह रुकने के बाद आती है, अब क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। आज अगर आप बाहर समाज में देखेंगे तो दुनिया डरी हुई है, सब कल की कल्पना करते ही घबरा जाते हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वही कल्चर था जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया कि जब भी जिंदगी के अंदर कोई भी समस्या आए और हमारी स्पीड रुक जाए तो बैक टू बेसिक्स। आप सब लोग, जितने लोग
मतलब जानते हैं, जो लोग डायमंड क्लब में हैं वो सब लोग विटनेस हैं कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर रजत सर ने अचानक से, पिछले कुछ सालों से वो बहुत सारे लोगों से मीटिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का दौर आया उनको लगा कि अपनी टीम को सहारा देने की जरूरत है। तो मैंने 2001 वाले रजत सर, 2001 वाले सारे डायरेक्टर्स वापस देखे। एक से अनेक का आगाज हुआ, वहां पे सब लोगों से मिलना शुरू किया, दोबारा से सर ने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, दोबारा से शेयरिंग्स के सेशन शुरू हो गए, दोबारा से वही पॉजिटिव वेव्स चलानी शुरू हो गई। और ना कि ये काम सिर्फ अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए हुआ, यही काम स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए हुआ, यही चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई। कोरोना वायरस के साथ बहुत सारी चीजें दोस्तों बदलती चली गई, लेकिन हम लोग वक्त से पहले ना कि सिर्फ वापस खड़े हुए, जबकि पहले से ज्यादा बिजनेस करके खड़े हो गए। मतलब आप सब लोग ये बात जानते ही हैं कि रिकॉर्ड तोड़ सेल्स करनी शुरू कर दी, जिसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ी चीज कंपनी की सोच थी, कंपनी की मैनेजमेंट की सोच थी। वापस फर्स्ट गियर में आ गए। 2001 में मुझे ध्यान था कि हमारी कंपनी बोनस दिया करती थी कि अगर आप इतनी सेल्स कर लोगे, इतना चेक बना लोगे, तो आपको उसके ऊपर ये इंसेंटिव मिलेगा। दोबारा से मैं 2020 के अंदर आज वही दौर देख, और जिस तरीके से सर मिला करते थे, टीम से मोटिवेट किया करते थे, हर सप्ताह मीटिंग होती थी और जब जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता था। आज फिर से वही दौर शुरू हो गया, बैक टू बेसिक्स। यही चीज मैं आपसे करना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी को अभी वापस से फर्स्ट गियर में लेके आना है। डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, लोग बड़े बड़े लेवल्स पे आ गए, लेकिन वो डिजिटली एनेबल्ड नहीं थे, वो डिजिटली बहुत स्ट्रांग नहीं थे। आज बदलाव मुश्किल तो है, बदलाव चुनौती तो है, लेकिन इस बदलाव के साथ अगर हम बदलेंगे नहीं तो ऐसा ना हो नोकिया वाली स्टोरी दोस्तों हमारी भी हो जाए। आगे चलते हैं और मैं बात करना शुरू करता हूं। हमारे पास 3 तरह की ऑप्शन थी, मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर हमें अपने अंदर बदलाव लेकर आना है, अगर हमें अपने अंदर बदलाव लेकर आना है तो सेफ शॉप से सीखना चाहिए, क्योंकि चेंज बिफोर टाइम इज द आइडियल ऑफ सेफ शॉप। हमें अपने आप को वक्त से पहले बदला, आज से नहीं, हमेशा से सेफ शॉप ने वक्त से पहले बदला, और उसके नतीजे क्या रहे वो आप देख रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। द फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट चैलेंजिंग। चेंज बिफोर टाइम इज अ मोस्ट चैलेंजिंग जॉब। बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं दिख रहा होता, उस अंधकार में एक उम्मीद की किरण लेके आगे बढ़ना ही मोस्ट चैलेंजिंग होता है। ओनली लीडर्स कैन डू दिस, सर वही कर सकते हैं। सेफ शॉप इज यूजिंग बेस्ट टेक्नोलॉजीज। आज सारी दुनिया कॉपी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे पहले सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज लेके बदलना शुरू किया। और एक आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है, दूसरा आपके साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बहुत जरूरी हैं, तीसरा वर्क डे एंड नाइट टू अपग्रेड योर टीम्स। आज कंपनी की मैनेजमेंट अपनी टीम को अपग्रेड करने के लिए दिन रात काम कर रही है। सुबह 5-6 बजे से लेके ऑफिस के सारे ऑपरेशंस चेंज हो रहे हैं। हमारे वेयर हाउस वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट डिस्पैच टेक्नोलॉजी पे आ रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम पुराने सिस्टम पे चल रहे थे, लेकिन कोरोना के दौर के अंदर हमारे को एक टाइम मिला, तो जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस सिस्टम है, जो वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट सिस्टम है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी सक्सेसफुल होकर आपके सामने भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो वर्क डे एंड नाइट टू अपग्रेड टीम्स, सेल्स टीम, डिस्पैच टीम, अकाउंट्स टीम, सब अपग्रेड हो रही है। इसका नतीजा है पोस्ट कोविड रिजल्ट्स आर रिकॉर्ड सेल्स। कोविड खत्म होते ही, कोविड तो नहीं खत्म हुआ, हाँ मैं कह सकता हूं यहाँ पे पोस्ट कोविड की जगह मुझे पोस्ट लॉकडाउन जरूर लिखना चाहिए था कि पोस्ट लॉकडाउन रिजल्ट्स आर रिकॉर्ड सेल्स। तो अर्निंग मोर देन प्री कोविड। लोगों की अर्निंग्स आप नेट पर देख पा रहे हैं, आप फेसबुक पर देख पा रहे हैं, अचीवमेंट्स देख पा रहे हैं कि रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं। आज इस दौर के अंदर जब दुनिया को ये भी नहीं समझ आ रहा कि आगे जिंदगी कैसे चलेगी, भविष्य में क्या होगा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, फीस कैसे देंगे, बिजनेस कैसे चलेगा, सैलरीज कैसे होंगी, उस दौर के अंदर सेफ शॉप के लीडर्स आज घर खरीदने का और लग्जरी कार्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं। द रीजन इज द ऑर्गेनाइजेशन हैज चेंज्ड बिफोर टाइम। वक्त से पहले अपने आप को बदल लिया। सेकंड कैटेगरी, चेंज विद टाइम। सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं। ये भी अपने आप में चैलेंज है, ये भी चैलेंजिंग है, इसके अंदर भी चुनौती है। तो जो वक्त के साथ चेंज करते हैं, दे नीड टू लर्न फ्रॉम लीडर्स। बहुत सारे लोग हैं जो लीडर से कॉपी करके सीख रहे हैं कि क्या क्या करना है। आज सेफ शॉप ने जो जो स्टेप लिए, बाकी कंपनीज ने, या मैं बोलूंगा कि बड़े टॉप लीडर्स ने जो जो स्टेप लिए, सेकंड स्टेज ने, थर्ड जनरेशन ने वही स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। दे कॉपी टेक्नोलॉजीज। और जिन लोगों ने वक्त के साथ अपने आप को बदलना शुरू किया, लीडर से सीख लिया, मार्केट लीडर से सीखा, सारी टेक्नोलॉजीज अच्छे से कॉपी करी, दे आर परफॉर्मर्स। उनमें से 2 कैटेगरी के लोग हैं,
परफॉर्मर्स भी उसी में है और सर्वाइवर्स भी उसी में है। लेकिन मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं जो आज यहां सुन भी रहे होंगे, जो ना तो बिफोर टाइम चेंज कर रहे हैं ना विद टाइम। आज वक्त निकल गया है, अगर वो आफ्टर टाइम चेंज करने पे आए, जो लोग जिनकी आदत है वो वक्त के बाद बदलते हैं सबसे लास्ट में, दे आर स्टिल वरीड अबाउट फ्यूचर। अभी भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं दोबारा सेमिनार कब शुरू होगा, दोबारा मीटिंग्स कब शुरू होंगी, दोबारा हम टूर एंड ट्रैवल कब कर पाएंगे, और जब शुरू होगा वो तब से अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। आज भी वो डिजिटल मोड में नहीं आ रहे, आज भी वो सीखने के मूड में नहीं है, आज भी वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं पुराना वक्त वापस आ जाएगा। तो वो सब चीजों के साथ में क्या होगा, वो आप सब चीजें सोच ही सकते हैं कि उनका वक्त कैसे होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं, और बेसिकली सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि हमारे को जो फोर्थ गियर से फर्स्ट गियर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसी टाइम आ गई थी जिस टाइम पे उसकी जरूरत थी, और दोबारा से आज हम फोर्थ गियर से ज्यादा टॉप गियर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। जो भी फिफ्थ सिक्स्थ ऑप्शन आज टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, वी आर परफॉर्मिंग बेटर देन बिफोर। लेकिन जो आने वाला चेंज है, जो हमें 2 महीने का वक्त मिल गया ड्यू टू कोविड, उसके अंदर सेफ शॉप बहुत तेजी से परफॉर्म करने वाली है। My last message is you can't spell challenge without change. तो फ्रेंड्स, चैलेंज के अंदर जो है ना वो मतलब आपके सामने है बिल्कुल कि यू हैव टू चेंज, वक्त के साथ बदलना है। और जो लोग वक्त के साथ बदलेंगे वो भी लीड करेंगे, लेकिन जो वक्त से पहले चलेंगे, जो वक्त से पहले ग्रो करेंगे, जो वक्त से पहले लर्न करके अपनी आदतों को बदल लेंगे, वही मार्केट में लीड करेंगे। चॉइस इज आवर्स, चॉइस हमारी है। हमें देखना है कि हमें वक्त से पहले बदलना है, हमें वक्त के साथ बदलना है, या हमें वक्त के बाद बदलना है। तो मैं दोस्तों यही अपनी बात करना चाहता था कि आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि जिंदगी गाड़ी पहले की तरह चलेगी, जिंदगी की गाड़ी पहले की तरह नहीं चलेगी। हमें बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगी, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। फोर्थ गियर से गाड़ी फर्स्ट गियर के अंदर लेके आइए, दोबारा से बेसिक्स पे काम करना शुरू कीजिए। दोबारा से आज मैं भी काम कर रहा हूं, मैंने नई लिस्ट बनाई जिन लोगों को मैं कभी पर्सनली जाके अप्रोच नहीं कर पाता था, मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा, जूम मीटिंग से जोड़ा, फेसबुक से जोड़ा, और उसके माध्यम से मैंने उनको प्लान दिखाया। 11 डायरेक्ट सेल्स मैंने निकाली है पिछले कुछ समय के अंदर। तो यहां से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कभी दोबारा वक्त मिलेगा तो इस बात को बहुत डिटेल में करूंगा, क्योंकि जो लेसन मेरे फादर ने मुझे दिया था, इसने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत फायदा दिया। मैंने अपने पिछले 19.5 साल के अंदर बिजनेस, ऐसा नहीं है कि बिजनेस एक साइड चलता चला गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, मैं बोलूंगा आप पिछले 19.5 साल में 50 से ज्यादा बार बिजनेस डाउन गया। लेकिन एक बात आदत में मेरे पिताजी ने शामिल कर दी थी, और वही चीज मेरे गार्डियंस ने, मेरे मेंटर्स ने, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने शामिल करी कि जब जब जिंदगी के अंदर स्पीड स्लो या रुके, जब जब अनसर्टेनिटी दिखे, आपकी स्पीड कहीं पर रुक जाए, बैक टू बेसिक्स, बेसिक्स पे वापस आ जाइए, अपनी लिस्ट दोबारा बनाइए। मैं आपको बताऊं, जब पहली बार लिस्ट बनाई थी तो 60 लोगों की लिस्ट थी। अब मैंने जब कोविड के द्वारा लिस्ट बनाई तो 18,700 कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे फोन बुक के अंदर। वो 18,700 की लिस्ट बनाई, उनमें से 11 सेल्स आ चुकी हैं और बहुत सारी आने के लिए फिर तैयार खड़ी हुई हैं। उसके बाद फील्ड में जा तो नहीं पाए, लेकिन जूम कॉल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट प्लान्स दिखाने शुरू कर दिए। मैनेजमेंट बैक टू बेसिक्स पे आ गई, हम लोग बैक टू बेसिक्स पे आ गए। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग आ गए हैं वो वापस 4-4 लाख की कैपिंग पे पहुंच चुके हैं, और जो लोग नहीं आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी वापस आए। पहले से बड़ा स्कोप है। डिजिटल दौर के अंदर हम लाखों करोड़ों लोगों का सेमिनार एक साथ कर सकते हैं। स्कोप बहुत है, मैनेजमेंट बहुत तेजी से आगे प्लानिंग कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच। इससे आगे की बात करने के लिए मैं कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग राजानंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा कि सर प्लीज आप हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राजानंद सर। गुड आफ्टरनून दीपक बिरला जी, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत बधाई आपको। द चैलेंज ऑफ चेंज जो जिसके बारे में आज आपने हमें बताया है, दोस्तों दिस इज अ रियलिटी टुडे। आज जो कोविड का टाइम है, वक्त के साथ बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग वक्त के साथ बदलते हैं
जो लोग वक्त से पहले बदलते हैं और जो लोग वक्त के बाद बदलते हैं। दीपक बिरला जी ने आपको बताया कि किस तरीके से अगर हम वक्त से पहले बदलें, वक्त के साथ बदलें, तो क्या बदलाव आता है जिंदगी में। और इनका जो जिन्होंने बताया कि बैक टू बेसिक्स, दोस्तों ये मेरे को भी सीखने को मिला है, मुझे भी बहुत हौसला मिला है, बिकॉज आज के दौर में बैक टू बेसिक्स इज द रियलिटी। चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज के टाइम में, और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि जो हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारी कंपनी ने, हमारे लीडर्स ने जो हमें सपोर्ट दिया साथ में बिफोर टाइम बदलने का, उसके रिजल्ट्स आज हम देख रहे हैं। और मैं अपनी पूरी सेफ शॉप टीम से यही उम्मीद करता हूं कि जैसे सभी ये टॉप लीडर्स ने, कंपनी ने जो चेंजेस एक्सेप्ट करे हैं, आप भी इसी तरह से अपने नेटवर्क में चेंजेस एक्सेप्ट करें, लोगों को सिखाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म, आज की बिजनेस कैसे करना है, जैसे बिजनेस हम पहले कर रहे थे और आज किस तरीके से इस बिजनेस को आगे लेके जाना है, ये एक रियलिटी है। जैसे उन्होंने बताया, यू कांट स्पेल चैलेंज विदाउट चेंज। इस चेंज ने ही हमें हिम्मत दी, इस चैलेंज ने, कि आज कोविड में बिजनेस कैसे करें, इस कोरोना के दौर में हम कैसे आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे सभी लीडर्स ने मिल के इसको एक्सेप्ट किया। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने नेटवर्क में ये चेंजेस पूरे उनको समझाएं किस तरीके से ये चेंजेस आगे लेके जाने हैं। और नेक्स्ट बुधवार इन चेंजेस में प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर सुनील कुमार मान जी नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को यहाँ पर उपस्थित होंगे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।